हाय, माय नेम इज़ परवेज आलम फ्रॉम ब्रो एंड सीस लीगल स्टडी सेंटर। सो आज का टॉपिक है सेक्शन 14 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। सो परपेचुइटी का मतलब क्या है? परपेचुइटी मीन्स लास्टिंग फॉर एवर। इट मीन्स कंटिन्यूअस और अनएंडिंग ट्रांजेक्शन। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी फॉर एन indefinite period. Transfers involving generation after generation, पीढ़ी दर पीढ़ी, आर ऑल्सो नॉन एज क्रिएटिंग परपिच्यूटीज। सो इसको हिंदी में पीढ़ी दर पीढ़ी कहते हैं। इट मीन्स जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स। इसको हम बंगाली में वंश परंपराएं भी कहते हैं। In the words of German, a perpetuity in the primary sense of the word is a disposition which makes property inalienable for an indefinite period. This section is known as modern rule against perpetuity. सो अगर आप ये सोचते हो कि आपका जो प्रॉपर्टी है वो जेनरेशन्स आफ्टर जेनरेशन्स आपका फैमिली वालों के हाथ में ही रहेगा, देन दैट इज़ नॉट अलाउड इन द आइज ऑफ लॉ बिकॉज लॉ फेवर्स एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सो लेट्स सी बेयर एक्ट में क्या लिखा है। नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more persons living at the date of such transfer, and the minority of such people and the minority of such person who shall be in existence at the expiration of that period, and to whom if he attains full age the interest created is to belong. सो अगर हम सेक्शन 14 का एनालिसिस करें हमें चार पॉइंट्स दिखेगा। द फर्स्ट पॉइंट इज there should be a transfer of property. Second, transfer is to create an interest in the favor of an unborn person. Third, interest so created should take effect after the lifetime of one or more persons living at the date of such transfer and during the minority of the unborn person. Fourth, the unborn person should be in existence at the expiration of the interest of the living person. Let's take an illustration. A transfer a property to B for life, then to B's sons for life, then to B's son's son for life, then to B's son's son's son for life. Here neither B nor his sons and grandsons are living. So this transfer will be void as it is creating an ending transaction and making the property inalienable. If by any mechanism the property is made inalienable, it would be detrimental to the property. नाउ कमिंग टू परपिच्युटी पीरियड। परपिच्युटी पीरियड क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, द मैक्सिमम परमिसिबल रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग इज द लाइफ ऑफ द लास्ट प्रीसीडिंग इंटरेस्ट प्लस माइनॉरिटी ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। इसको मैं आगे जाके समझाऊंगा इन डिटेल्स। द पीरियड फॉर विच द वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी पोस्टपोन्ड इज गिवन बिलो। नंबर 1, where the unborn person has come into existence either at or before the expiry of the last prior interest, his minority period, and the second point is where the unborn person is in womb at the expiry of the last prior interest, the period of gestation plus his minority. चलो इस पूरी केस को मैं एक एग्जांपल द्वारा समझाता हूँ। A transfers his property in 1960 to B for life, then to C for life, then to D for life, then to E for life, and then to B's such son UB, who should first attain the age of 18 years. B, C, D and E were all living on the date of the transfer. B dies in 1980, C in 1975, D in 1982 and E in 1992. B's son UB is born in 1970. So ए ने अपना एक प्रॉपर्टी 1960 में अपना एक अनबोर्न बेटे को ट्रांसफ़र किया था, मीन्स उसके बेनिफिट के लिए ट्रांसफ़र किया था। तब बी सी डी ई सब जीवित थे और बी 1980 को उसका देहांत हुआ, सी का 1975, डी का 1982 और ई का 1992 में देहांत हुआ। इतने में जो अनबोर्न पर्सन था वो 1970 में उसका जन्म हुआ और उसका 18 साल 1988 में हो चुका था। नाउ बी के पहले ही सी मर गया, सो उसका हिसाब ख़त्म। सो बी का लाइफ इंटरेस्ट 1980 में जब बी मरा
तब उसका लाइफ इंटरेस्ट डी के पास गया, और डी जब मरा तब उसका लाइफ इंटरेस्ट ई के पास गया। नाउ ई 1992 में मरा, लेकिन जो अनबॉर्न पर्सन था यू बी, उसका 18 ईयर्स कंप्लीट हुआ 1988 को, यानी 18 साल पूरा होने के बाद भी जो ई है वो ज़िंदा था। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन हमें माइनॉरिटी देखना पड़ेगा, एंड माइनॉरिटी इज़ 18 ईयर्स ऑफ एज। सो हम मैक्सिमम उस इंटरेस्ट को, मीन्स ई का लाइफ इंटरेस्ट 18 ईयर्स तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 1988 में अनबॉर्न पर्सन का 18 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है, मीन्स मैक्सिमम जो माइनॉरिटी एज है वो कंप्लीट हो गया। देन आफ्टर 1988 द अनबॉर्न पर्सन विल बिकम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अगर ऐसा केस होता है कि जो लास्ट लाइफ इंटरेस्ट होल्डर है उसका जब डेथ हुआ तब अनबॉर्न पर्सन का एज लेस देन 18 ईयर्स था, इट कैन बी लाइक 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, इवन इफ इट इज़ लेस देन 10 ईयर्स, still the unborn person will then become the absolute owner over that property. Now अगर मान लेते हैं कि जो लास्ट लाइफ इंटरेस्ट होल्डर है वो मर गया, लेकिन तब भी जो अनबॉर्न पर्सन है उसका बर्थ नहीं हुआ, मीन्स वो स्टिल अपनी माँ की उम्र में है, देन व्हाट विल हैपन? इन दैट केस द period of gestation has to be included as a period of grace with the perpetuity period, that is normally it is like 9 months or 280 days। मतलब इस gestation period या 280 डेज़ का उस बच्चे को ग्रेस मिल गया। अगर इस 280 डेज़ के अंदर, मीन्स जो लास्ट लाइफ इंटरेस्ट होल्डर है उसके मरने के बाद 280 डेज़ के अंदर उस बच्चे का जन्म नहीं हुआ, देन दैट property will be reverted back to the either to the transferor or the heirs of the transferor। यहाँ पर एक फेमस केस लॉ है सौंदरराजन वर्सेस नटराजन, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1925 का ये केस है। यहाँ पर बोला गया था कि 18 ईयर्स इज द एज ऑफ माइनॉरिटी, मैक्सिमम एज ऑफ माइनॉरिटी। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का कुछ एक्सेप्शंस भी है, लाइक पेमेंट ऑफ डेथ। अगर कोई पर्सन कुछ उधारी लिया था और किसी के कारण उसका मौत हो गया, सो उसके ऊपर डेथ है, सो इस डेथ को उसका जो आने वाला जो जनरेशन्स है उस जनरेशन्स को जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स उसको चुकाना पड़ेगा। देन कम्स लाइक चैरिटी, क्रिएशन ऑफ चर्च, पर्सनल एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट ऑफ सेल, मॉर्टगेज, राइट ऑफ री एंट्री एंड एंट्री, कोवेनेंट फॉर रिन्यूअल ऑफ लीज, कोवेनेंट रनिंग विथ लैंड, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। इन सब में सेक्शन 14 एप्लीकेबल नहीं होगा। लाइक इन मॉर्टगेज, ए ने अपना एक प्रॉपर्टी मॉर्टगेज किया और किसी कारण उसका मौत हो गया, देन उसको उस मॉर्टगेज का जो डेथ होता है, देन उसका जनरेशन्स के ऊपर, कमिंग जनरेशन्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा कि वो मॉर्टगेज जो उसने लिया था उसको क्लियर करना। Coming to applicability in Hindu and Muslim law, the Amendment Act of 1929 made applicable the rule against perpetuity to Hindus. Before this amendment, the rule against perpetuity was made applicable to Hindus by local enactments like Hindu Disposition of Property Act 1916 and Madras Act 1914. Chapter 2 of Transfer of Property Act 1882 is not applicable to Muslims, and exception has been made only in favor of waqfs. So that's all for today. If you like it, make sure to support me by subscribing, and see you in the next video. Till then, peace.